Hello everyone, I am Simranjeet Kaur and welcome to my channel Tera Tera Sab Tera. So in this video, I will tell you about some yogic exercises, or we can say Suksham Vyayam, or the warm-up exercises. These exercises should be done before any yogic practice, just to warm up the body. What you need to do is just do these exercises regularly before commencing any asana, pranayama, mudra, bandh, meditation or shatkarma. What exactly it does, it regulates your blood circulation throughout the body and gives you the enough flexibility to do any yogic practice. So the most important thing is this sequence. इसका sequence कैसा होना चाहिए? So the sequence should be either from toe to head or head to toe. इसका मतलब ये है कि हमने जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तब हमने टो टू हेड जाना है या फिर हेड टू टो जाना है. इसका मतलब ये है कि पहले पैरों की स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर लेग्स पे आएंगे, उसके बाद फिर हम बेली पे आएंगे, फिर हम अपर बॉडी पे आएंगे विद शोल्डर्स, आर्म्स एंड देन नेक एंड देन हेड. तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, या तो फिर हेड टू टो होना चाहिए. तो एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीक्वेंस फ्रॉम टो टू हेड. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टो बेंडिंग. Raise your left leg and move your toes backward and forward direction. Make sure your breathing should be, when inhale, toes should move backward, and exhale, toes should move forward. Do this for 8 to 10 times. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now repeat the same with the right leg. Inhale, exhale, inhale, exhale. Do the same for 8 to 10 times. Inhale, exhale, back and relax. Now ankle bending. Raise your left leg and stretch the ankle towards the knee. Then bend the ankle towards the floor. Inhale, exhale. सांस लेते हुए पैर को नी की तरफ और सांस छोड़ते हुए पैर फ्लोर की तरफ. डू दिस फॉर 8 to 10 times. Inhale, exhale, inhale, exhale, back and relax. Then do the same with the right leg. Inhale, exhale, inhale, exhale. Do the same for 8 to 10 times. Inhale, exhale, back and relax. Now is the ankle rotation. Raise your left leg and slowly rotate the left foot clockwise for 10 times. Inhale on the upward movement and exhale on the downward movement. Then repeat 10 times anti-clockwise. Inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, exhale and relax. Then do the same with the right leg. Inhale, exhale. जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने एंकल को रोटेट करना है, और आपकी जो अवेयरनेस है वो आपकी ब्रेथ के ऊपर और आपके जो एंकल जॉइंट है उसके ऊपर होनी चाहिए. पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. ये इसका सीक्वेंस है. नेक्स्ट इज रेज योर राइट लेग एंड स्टार्ट मूविंग द लेग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. मेक श्योर योर राइट आर्म शुड गो ऑपोजिट टू द राइट लेग. इसकी जो अवेयरनेस है वो आपकी लेग्स और आर्म्स की मूवमेंट पर होनी चाहिए. Do this for 8 to 10 times. Stretch your body as much as you can. Back and relax. Then repeat the same with your left leg. जितना हो सके सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करना है, उससे ज़्यादा नहीं. Back and relax. Next is
Wide stretch your legs as much as you can. Do not strain as it may tear your muscles. जितना हो सके सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करना है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है. Inhale and raise your arms. Exhale and slowly bend your back and touch the floor with your hands. ज़्यादा बेंड नहीं करना है, जितना हो सके, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है सिर्फ उतना ही बेंड होना है. जिनको सिवियर बैक प्रॉब्लम्स है उनको ये स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, आप इनको अवॉइड ही करें. नाउ इनहेल एंड स्लोली बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन. ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है तो साथ में ही आपको बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी है. इससे क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी. नाउ फॉर बैकवर्ड बेंडिंग, प्लेस योर हैंड्स ऑन टू योर बैक and hold your back firmly. Then slowly bend your upper body to the backward direction. This makes your back more flexible. जिनको बैक की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. Now back and relax. So फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमने दोनों डायरेक्शंस में अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी है. Now next is Padhastasana. Stand straight. Now inhale and raise your arms and slowly bend forward. आगे की तरफ जब हमने बेंड होना है तब अपनी बैक को बेंड करना है इंस्टेड ऑफ शोल्डर्स. Many a people bend the shoulders instead of back, which is incorrect method. So now inhale and back to the neutral position. This is the Padhastasana. Now it's time to rotate the belly. Now wide stretch the legs. Then place your hands on the waist. Now start rotating the belly clockwise for 10 times. Then rotate anti-clockwise for the same. जो आपकी अवेयरनेस है वो आपकी बेली की रोटेटिंग के ऊपर होनी चाहिए कि वो सही में रोटेट कर रही है या नहीं. अपनी पूरी बॉडी को रोटेट नहीं करना, सिर्फ बेली को रोटेट करने की कोशिश करनी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रेज योर आर्म्स एट द शोल्डर लेवल एंड ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड. जितना हो सके उतना आपने ट्विस्ट करना है अपनी वेस्ट को, और आपका जो राइट हैंड है वो आपके लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर होना चाहिए और आपकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन एंड डू द सेम विद द राइट साइड. नाउ डू इट लिटिल फास्ट. रिपीट द सेम फॉर 8 to 10 times. जितना हो सके सिर्फ उतना ही अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है. डू नॉट मूव योर फीट विद योर बॉडी. बैक एंड रिलैक्स. नाउ इट्स टाइम फॉर ताड़ासन. रेज योर आर्म्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड स्ट्रेच योर बॉडी एंड स्टैंड अप ऑन योर टोज. जितना बॉडी अलाउ करे सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करना है, एज फ्लेक्सिबिलिटी इन मसल्स कम्स ग्रेजुअली. So hold this posture for 15 to 30 seconds. जितना देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर ही होल्ड करना है. Then exhale and back to the normal position. So now after Tadasana, do Triang Tadasana. Stand straight with legs apart and make the posture as in Tadasana. But do not stand upon the toes, and bend your upper body to the right side and hold for a few seconds. Then back to the neutral position and bend on the left side. Do this fast for 8 to 10 times. ऊपर आते टाइम सांस लेनी है, नीचे जाते टाइम सांस छोड़नी है. Back and relax. Then again stand straight and make the posture of Tadasana and walk slowly on your toes as you can see in the video. Walk for a minute and then relax.
जब आपने ये वॉक करनी है तब आपका जो फोकसिंग होएगी, आपकी जो आपने फोकस करना है वो सिर्फ सामने एक चीज़ पर ही फोकस होना चाहिए, नहीं तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो आपने ये 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ही वॉक करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है बॉडी को। नाउ बैक एंड रिलैक्स। So this is called walking in Tadasana. Now comes the exercises for arms, hands and shoulder. First, outstretch your arms at the shoulder level and make a fist. जो आपका थंब है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, फिंगर्स के अंदर। Open the hands and stretch the fingers. Then make a tight fist and open the hands. Tight fist, open the hands. Inhale as you open the hands and make a fist while exhaling. Do this for 8 to 10 times. और अपनी फिंगर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है और टाइट फिस्ट बनानी है. Then back and relax. Now here comes the wrist bending. Remain in this position and slowly bend the hands backward and forward. जब हमने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो सांस लेना है, जब नीचे की तरफ लेकर जाना है तब सांस छोड़ना है. Repeat this for 10 times. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है. So this was the wrist bending, back and relax. Now, wrist bending, here comes the wrist joint rotation. Remain in the previous position and make a fist and start rotating your wrist joint in circular motion. Do this for 5 to 10 times. सिर्फ आपने अपने रिस्ट जॉइंट को ही रोटेट करना है, अपनी एल्बोज या अपने आर्म्स को रोटेट नहीं करना है. Now repeat the same with the opposite circular motion for 5 to 10 times. इन एक्सरसाइजेस को हमने ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 5 to 10 टाइम्स ही करना है, क्योंकि हमारी जो आर्म्स है वो ऐसे पेन करना स्टार्ट कर देती हैं अगर हम ज़्यादा देर तक करें तो. देन बैक एंड रिलैक्स. नाउ अगेन उसी पोजीशन में रहकर अपनी दोनों एल्बोज़ को बेंड करना है और स्ट्रेट करना है. इनहेल while straightening the arms and exhale while bending the arms. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Repeat this for 10 times. इसको भी ज़्यादा नहीं करना है, इससे क्या होगा हमारी एल्बोज़ पे ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है और ज़्यादा स्ट्रेचिंग हमने नहीं करनी है. जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे सिर्फ उतना ही. बैक एंड रिलैक्स. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर रोटेशन. स्टैंड स्ट्रेट, प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव थाइज, देन स्टार्ट रोटेटिंग द शोल्डर्स फ्रॉम फ्रंट टू द बैक फॉर 5 to 10 टाइम्स. जो ध्यान है वो आपका उस बॉडी पार्ट पे होना चाहिए जहाँ आपके स्ट्रेन फील हो रहा है. ज़्यादा आपने ज़ोर से इसको रोटेट नहीं करना है और इस डायरेक्शन में करने के बाद हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, लाइक बैक टू द फ्रंट फॉर 5 to 10 टाइम्स. सेम उसी सर्कुलर मोशन में हमने अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है. जितना हो सके सिर्फ उतना करना है, ज़रूरी नहीं है कि 10 टाइम्स ही करना है, जितना आप कर सकते हैं, चाहे 5 बार या 10 बार. नाउ अगेन स्टैंड स्ट्रेट एंड बेंड द एल्बोज एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन टू द शोल्डर्स एंड स्टार्ट रोटेटिंग द एल्बोज विद शोल्डर जॉइंट फ्रॉम फ्रंट टू द बैक. डू दिस फॉर 10 टाइम्स. अगर 10 टाइम्स नहीं होता तो 5 बार भी बहुत है, लेकिन अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है. मैं बार बार यही कहूँगी, जितनी बॉडी अलाउ करे सिर्फ उतना ही. एंड देन
Do the same from back to the front for 10 times. हमने वैसे ही सर्कुलर मोशन में इसको बैक से फ्रंट तक अपने पूरा सर्कल बनाना है और अवेयरनेस वहीं जहाँ स्ट्रेचिंग हो. Back and relax. It's time to do the neck exercises. Stand straight and move your neck from front to left side. Then come to the neutral position and do the same with the left side. Repeat this for 5 to 10 times. Now the head rotation exercises. Stand straight with the legs apart. Place your hands on the side of your belly. Then slowly rotate your head from right to left side for 3 to 5 times. ज़्यादा हमने इसीलिए नहीं करना है क्योंकि कई लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए सिर्फ 3 to 5 टाइम्स. कईयों को आंखें खोल के ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, अगर बैठ के करना है तो आंखें बंद करके कर सकते हैं. एंड देन रोटेट इट विद द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट करना है. पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया 3 to 5 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम्स. ज़्यादा ना करें, पहले पहले क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे, इसीलिए ज़्यादा नहीं करना है. If anyone is suffering from severe cervical region related problems, then skip the full head rotation exercises. Then they should perform half head rotation exercises. इन एक्सरसाइजेस को हमने स्लोली करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है. सो बैक एंड रिलैक्स. अब है हाफ हेड रोटेशन. इसमें हमने क्या करना है, जस्ट बेंड योर नेक टू द राइट साइड and rotate the head from right to left side. Then again rotate the head from left to right side. Do this for 3 to 5 times. इसमें भी हमने ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है अपनी नेक को या हेड को. और ये जो एक्सरसाइज है वो सर्वाइकल रीजन रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करें. तो इसको भी हमने ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 to 5 टाइम्स ही करना है, ज़्यादा नहीं, और जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे. सो द नेक्स्ट वन इज़ स्टैंड स्ट्रेट एंड प्लेस योर हैंड ऑन द बैक. मेक श्योर योर हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द बैक, ऑन द thoracic vertebras. और आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए. नाउ होल्ड द एल्बो विद द लेफ्ट हैंड. रिमेन इन दिस पोस्चर फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स. इस पोस्चर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड के लिए रहना है, या ज़्यादा हम 30 सेकेंड्स के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है. इससे क्या होगा, आपके मसल्स टीयर होने का खतरा रहेगा. सो बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन. देन रिपीट द सेम विद द लेफ़्ट आर्म. जो हमारा हाथ है वो हमारे बैक पीछे बिल्कुल thoracic vertebras जहाँ होते हैं वहाँ होना चाहिए, और हमने अपने दूसरे हाथ से अपनी एल्बो को स्ट्रेच करना है. और जो हमारी एल्बो है, हमारा जो आर्म है, वो ईयर के पीछे होना चाहिए, ईयर के आगे नहीं, या ईयर के साथ नहीं, ईयर के पीछे, तभी वो स्ट्रेच होगा. तो जितना हो सके सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं. बैक. So friends, this is all about the Suksham Vyayam or the warm-up exercises. So one thing more I would like to add about the Surya Namaskar. जो सूर्य नमस्कार है इसको भी हम वार्म अप के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन्स होते हैं, जो अगर हम उसके 4-5 भी राउंड कर लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वार्म अप हो जाएगी और आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी. कोई भी योगिक प्रैक्टिस करने से पहले
हमने सूर्य नमस्कार ज़रूर करना है। सूर्य नमस्कार करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस, देन सूर्य नमस्कार एंड देन एनी अदर योगिक प्रैक्टिस। जो ये सूर्य नमस्कार है इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड and do like, share and comment, and do not forget to subscribe my channel Tera Tera Sab Tera. Thank you. Thanks for watching.